صحت اور علاج کا حق ہر پاکستانی کا ہے. اس کے اوپر جتنی بھی ہم توجہ دیں گے کم ہوگا. اسلام آباد آزاد جمہور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے. یہ اس اسکیم کی ریوائول بھی ہے جس کو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان میں اس کا پہلی مرتبہ اجرا کیا. علاج اور صحت کی سہولت ہر شہری کا بلا تفریق حق. حکومت صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز پر فراہم کر رہی ہے. صحت کارڈ پروگرام کا آغاز 2016 میں محمد نواز شریف نے کیا تھا. لاکھوں خاندان مستفید ہوئے. اسلام آباد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو صحت کارڈ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. صحت کارڈ کا اجرا عوامی فلاح کے عزم کا تسلسل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. وزیر اعظم صحت کارڈ پروگرام کیش لیس علاج کی سہولت فراہم کرے گا. پروگرام کے تحت ہر علاج کی شناخت اور ٹرانزیکشنز مکمل طور پر ٹریک کی جائیں گی. ڈیٹا کو پبلک ہیلتھ کے فیصلوں اور منصوبہ بندی میں استعمال کیا جائے گا. پروگرام مستقبل میں وبائی مرض یا ایمرجنسی کی صورت میں فوری رسپانس کے لیے مددگار ثابت ہوگا. حکومت صحت کی سہولیات ہر شہری تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. 1 کروڑ سے زائد شہریوں کو علاج کی سہولت ملے گی. وزیر صحت مصطفیٰ کمال. وزیر اعظم کی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال اور ٹیم کو مبارکباد. ایک لاکھ پاکستانی دہشت گردی کی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں. جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا. یقین کامل ہے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا. قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی. قومی پیغام امن کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پاکستان بنانے کا مقصد ایسے خطے کا حصول تھا جہاں اسلام کا بول بالا ہو. ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے اتنی کبھی نہیں تھی. ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے، قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو. قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا سر، اور بہت ہی قلیل عرصے میں اس کمیٹی نے بڑا ایک فعال کردار ادا کیا ہے قومی بیانیے کی تشکیل میں، اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں سر. یہ سر امن کا پیغام لے کر پورے پاکستان میں جائیں گے، اور اس کمیٹی کے مینڈیٹ کے تحت صوبائی کمیٹیاں اور پھر ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں ان کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیے کی جنگ میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے. مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. صوبائی اور ضلعی امن کمیٹیوں کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو. قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کے پائیدار امن اور استحکام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین. کمیٹی ارکان نے آئندہ کے لاحِ عمل کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے مختلف تجاویز بھی دیں. اجلاس میں کل عدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی متفقہ طور پر مذمت، شرپسند اور تقریبی عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بناتے ہوئے اختلافات سے بالاتر ہو کر آگے بڑھیں گے. امن کمیٹی امن کا پیغام لے کر ہر جگہ پہنچے گی. پیغام امن کمیٹی کے ارکان کا اظہار خیال. بینکس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا. یہ 3 ٹولوں میں تھے، تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا، اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے. 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہیں. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی. کھاران میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام. بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے. فرار ہونے والے 8 دہشت گرد جہنم واصل.
12 दहशत गर्दों की हलाकत की तस्दीक, मजीद 2 दहशत गर्दों के मारे जाने की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकामी आबादी की हिमायत से दहशत गर्दों को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए कर्नल और मेजर जख्मी हैं। सूबे के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बलोच नौजवानों को ला हासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मुल्क भर में शब मेराज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। आकाए दो जहां सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे मुअल्ला पर मालिक कायनात के हुजूर पेश हुए। शब मेराज में उम्मत मुसलमा को नमाज का अजीम तोहफा अता हुआ। मुल्क भर में फ्यूज़ व बरक़ात समेटने के लिए इबादत और महाफिल का खुसूसी एहतमाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों को शब मेराज के बाबरकत मौके पर मुबारकबाद। शब मेराज इत्तेहाद, इस्तकामत और उम्मीद का पैगाम देती है। इंसानी हमदर्दी के फ़रोग के लिए शब मेराज के पैगाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बाहमी रवादारी, अखुवत और अदलो इंसाफ को फ़रोग दें। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शब मेराज के मौके पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC बलोचिस्तान की पेशावराना तैयारियों और सलाहियतों पर ब्रीफिंग। FC के सपूत बहादुरी से भारतीय हिमायती दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं। मोहसिन नकवी। मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली नफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर। इंडस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। ये पाकिस्तान को मौसर और मोतबर शराकतदार के तौर पर उजागर करेगा। मसनूई ज़हानत को आसान बनाकर इसके अमली इस्तेमाल को मुख्तलिफ शोबों तक वसअत दी जा सकती है। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बर वक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा। उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। ये जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनका ये इख्तियार होता है कि कंडक्ट को सामने रखते हुए वो रेगुलेट करें मुलाकातों को। अडयाला जेल में बानी PTI को मुशक्कती समेत तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं। बानी PTI की मुलाकातें हो रही हैं। जेल में बेहतरीन क्लास दी गई है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरमाएकारों का हुकूमती मुस्बत मुआशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 3642 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 69 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। टैक्स इस्लाहात की मुस्बत समत। हुकूमती इक़दामात से महसूलात में नुमाया इजाफा। माली साल 2025 में टैक्स और लेवीज की मद में 130 खरब रुपए से जायद रकम जमा। टैक्स महसूलात मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP के तकरीबन 11.3% के बराबर है। वफाकी टैक्स वसूलियाँ जून 2028 तक GDP के 15% हदफ की तरफ बढ़ रही हैं। सूबाई हुकूमतों को भी टैक्स महसूलात के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद।
بھارت کی ایران کے ساتھ تعلقات کی اصلیت سامنے آ گئی۔ چابہار بندرگاہ معاہدے سے بھارت امریکی دباؤ میں دستبردار۔ مفادات کے حصول کے لیے ایران سے معاہدے ترک کرنا بھارتی دوغلی پالیسیوں کا ثبوت۔ بھارت نے پابندیوں کے نفاذ سے قبل تہران کو $120 ملین دیے تھے۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر موجود تمام سرکاری نامزد ڈائریکٹرز اجتماعی طور پر مستعفی۔ انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند۔ بھارتی میڈیا کی معاشی رپورٹ، بھارت ایران کی چابہار بندرگاہ کو مذموم عزائم کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ماہرین معاشی امور، طالبان رجیم کی اعلیٰ قیادت میں دھڑے بندی پر بی بی سی کی تفصیلی رپورٹ جاری۔ کابلی دھڑا شیخ ہیبت اللہ کی سخت گیر پالیسیوں سے ناخوش۔ کابلی دھڑا ایسی پالیسیاں بنانے کا خواہاں ہے جو بین الاقوامی برادری کو قبول ہوں۔ سراج الدین حقانی مضبوط کمانڈر، متعدد مواقع پر شیخ ہیبت اللہ کی پالیسیوں پر کھلی تنقید کی۔ شیخ ہیبت اللہ کے احکامات پر لڑکیوں کی تعلیم اور عورتوں کی عوامی زندگی میں شمولیت پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ بی بی سی کشمیریوں کو بھارتی کالے قوانین کے تحت گھروں، املاک اور زمینوں سے محروم کرنے کا سلسلہ جاری۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل پابندیاں مزید سخت۔ بھارتی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے باعث کشمیریوں کا جینا دوبھر ہے۔ بھارتی عدلیہ RSS کی حمایت یافتہ بی جے پی حکومت کے زیر اثر کام کر رہی ہے۔ حریت رہنما محمد فاروق رحمانی۔ اپر چترال میں فلائنگ کوچ کو حادثہ، پاک فوج کی بروقت کارروائی سے کئی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ پشاور سے چترال جانے والی کوچ کو کوراخ کے مقام پر دریا کے کنارے حادثہ پیش آیا۔ 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ زخمیوں کو بروقت ابتدائی طبی امداد کے بعد THQ اسپتال بونی منتقل کر دیا۔ پاک فوج نے شدید موسمی حالات اور دشوار گزار راستوں کے باوجود ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ آج سے 22 جنوری تک شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا امکان۔ رابطہ سڑکیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ۔ 20 سے 23 جنوری تک پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ NDMA کی صوبائی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو پہاڑی علاقوں میں ممکنہ برف باری کے پیش نظر پیش کی اقدامات اور ضروری مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ Iran is an immediate neighbor of Pakistan and a brotherly country. We hope for an early normalization of the situation in Iran and express support for all diplomatic efforts aimed at regional peace and stability. A stable and peaceful Iran is in the interests of Pakistan, the region and beyond. ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پرامن اور مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ تنازع کا پرامن اور سفارتی حل چاہتے ہیں۔ عالمی قوانین کا خیال رکھتے ہوئے تمام فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جبالیہ پر اسرائیلی حملے میں حماس کے اہم کمانڈر بھی شہید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان۔ بورڈ آف پیس کے ارکان کے نام جلد جاری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ Chance and taken. What a catch! Outstanding! Oh, now this time, that's another short one, and that should be. ICC Under-19 ورلڈ کپ، انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف 37 رن سے کامیابی۔ 211 رنز کے تعاقب میں قومی Under-19 ٹیم 173 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان فرحان یوسف 65 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ کیلب فالکونر 66 رنز کے ساتھ پلیئر آف دی میچ قرار۔ میچ PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہو گئی۔ فزیکل ٹکٹس 19 جنوری سے دستیاب ہوں گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ تمام مقابلے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ سیریز کا پہلا میچ 29 جنوری کو ہوگا۔
Well, we thought that might be coming. The short one. Well, Matt Gilk says. Here we go. David Warner. Didn't get all of it. और बिग बैश क्रिकेट लीग, सिडनी सिक्सर्स की सिडनी थंडर्स की 5 विकेटों से शिकस्त, 190 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीवन स्मिथ की 42 गेंदों पर सेंचुरी, बाबर आजम के 47 रन। थंडर्स के कप्तान डेविड वार्नर की सेंचुरी टीम के काम ना आ सकी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। When you're seeing shots like that. As that has gone. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए एक इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कमजोर और नादार तबके का सहारा बने। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम को शफाफियत के साथ आगे बढ़ाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत की सहूलियात हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत इस हक को अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है। इस्लामाबाद की टेरिटरी और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों और बहनों के लिए आज ये वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा किया जा रहा है। ये कदम इस हवाले से उस स्कीम की रिवाइवल भी है जिसको मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मर्तबा इसका इजरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सेहत कार्ड प्रोग्राम को शफाफियत और थर्ड पार्टी के जरिए मौसर बनाया जाए ताकि इलाज दुरुस्त जगहों पर और दुरुस्त तरीके से फराहम हो सके। सेहत और इलाज का हक हर पाकिस्तानी का है। इसके ऊपर जितनी भी हम तवज्जो देंगे कम होगा। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत और उनकी पूरी टीम थर्ड पार्टी के जरिए इंश्योर करेगी कि सही इलाज मुहैया किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में अवामी सेहत पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी सेहत से मुतल्लिक प्रोग्राम मौजूद हैं, जबकि सिंध में इस स्कीम के इजरा की तजवीज़ निहायत अहम है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन की रोशनी में ये प्रोग्राम मुल्क के सेहत के निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की जानिब एक अहम कदम है, जिससे 1 करोड़ से जायद अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद कायम खानी ने कहा कि अब किसी पाकिस्तानी शहरी को बीमारी का खौफ नहीं होगा। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के 600 से जायद पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल गिलगित के बर्फपोश इलाकों से लेकर गवादर के साहिलों तक कैशलेस इलाज फराहम करेंगे। प्रोग्राम के तहत हर इलाज की शनाख्त और ट्रांजैक्शंस को मुकम्मल तौर पर ट्रैक किया जा सकेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी दारुल हुकूमत, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरियों में अलामती तौर पर सेहत कार्ड्स तकसीम किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कौम ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं।
इस नासूर का हर कीमत पर सर कुचलेंगे। तफसील से आगाह करेंगे उमर फारूक। इस्लामाबाद में कौमी पैगाम अमन कमेटी के शुरा से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अहम कौमी उमूर पर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि इस जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। अफगान तालिबान रजीम और कालादम TTP के गठजोड़ ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। अमन के दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम होंगे। 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं। TTP और TTA का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, यकीन कामिल है कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान के तमाम मराहिल में अक़लियती बरादरी ने ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं, जिस पर हमें फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती को यकीनी बनाते हुए तमाम चैलेंजेस पर काबू पाना है। आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ रवां दवां है। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं, और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले इससे कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। मामलात को मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। हमें इन तमाम चीज़ों को तदब्बर, फ़हम फ़रासत, बुर्दबारी और हौसले के साथ इन चीज़ों को हमें आगे लेकर चलना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया की जंग में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। हम आंगी के फ़रोग के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी की काविशें काबिल इस्ताइश हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और कौमी अमन कमेटी के अरकान ने पायदार अमन और इस्तेकाम के लिए ताउन का यकीन दिलाते हुए मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शरपसंद और तखरीबी अनासर के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए इख्तलाफात से बालातार होकर आगे बढ़ेंगे। कमेटी अरकान ने आइंदा के लाए अमल के बारे में आगाह करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के इलाके खारान में दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में बैंकों को लूटने की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। फरार होने वाले मजीद 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील सरफराज शेख से। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का सूबे की आवाम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। कोयटा में अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि खारान में भी दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। 4 दहशतगर्द मौके पर, जबकि फरार की कोशिश में भागते हुए 8 मजीद दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। बैंक्स को लूटने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का जो रिस्पॉन्ड था वो सबसे बेस्ट था। ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया, और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फिर 8 लोग जो हैं वो मजीद मारे गए। लेकिन टेंटिवली जो हमें लग रहा है कि 14 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 12 इसमें कंफर्म है। वज़ीर आला ने बताया कि जख्मी हालत में कुछ मजीद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। दहशतगर्दों का मकसद बैंक लूटना था। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से ख़त्म होने की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रेंड है अगस्त ऑनवर्ड, ये डाउनवर्ड्स है, नोज डाउन है जो टेररिज्म का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अगला साल हमारा आ रहा है आगे, इंशाल्लाह ताला ये और कमज़ोर होंगे। मीर सरफराज बुगटी का मीडिया के सवालों पर कहना था, गुज़श्ता साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने 900 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए। कौम अपने बहादुर जवानों को सलाम पेश करती है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल करते हुए वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि PI की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया गया है। रिपोर्ट करेंगे फाहद जावेद। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार एयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फा सवालात में वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि PI की निजकारी से इदारे के इस्तातिकार में इजाफा होगा और सर्विस के म्यार को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। जहाँ तक इसकी होटल्स का ताल्लुक है,
ہوٹلز میں سر اس ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ ہیں. یہ صرف کور آپریشنز پی آئی اے کے جو تھے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے. جو اسکرائب آپ کا ہوٹل ہے، روزویلٹ ہے، وہ اس کے باہر ہیں. لائبلٹیز کے جی کچھ حصہ اس کو کارو آؤٹ کیا گیا ہے اور کچھ حصہ اس کا حصہ ہے. توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے بتایا کہ پاکستان نے گزشتہ سال چاول کی برآمد سے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا. اس سال بھارت کم نرخ پر عالمی منڈی میں چاول فروخت کر رہا ہے، جس سے یہ شعبہ دباؤ کا شکار ہے. پچھلے سال پاکستان میں ایک ایگریکلچر میں ہم نے بہت بڑا سرج دیکھا ایکسپورٹس کا، جو تقریباً ایز کمپیئر ٹو پچھلے سال تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا زیادہ تھا. اس میں ایک بہت بڑا کی کمپوننٹ ریزن یہ تھا کہ پچھلے 3-4 سال سے انڈیا جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹرنیشنلی رائس ایکسپورٹ نہیں کر رہا تھا. ہمارے ٹریڈرز کو ایک اچھا موقع ملا، انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا اور تقریباً کوئی 1.5-2 ارب ڈالرز اضافہ جو کہ ایکسپورٹ ہے اس میں ہم نے کیا. ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بتایا کہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والی بیشتر خواتین نجی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں. جو بلڈنگز ہیں وہ ہوٹلز ہوں، وہ کمرشل بلڈنگز ہوں، وہ ریزیڈینشل بلڈنگز ہوں، اس کے بائی لاز جو ہیں ہمارا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم امپروو بھی کرتا رہتا ہے، اسے امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. تو یقیناً کیونکہ یہ ہاسٹل جو ہیں اس کی ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ کمرشل بلڈنگز کی بجائے ریزیڈینشل ایریاز میں لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی ہو گئی. فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں نقطہ اعتراض پر کہا کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو کام کاج کے لیے مشقتی سمیت دیگر سہولیات میسر ہیں. قیدیوں سے ملاقات کا اختیار وفاقی حکومت کا نہیں بلکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہوتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد فیصل راؤ. سینٹ اجلاس صدر نشین سینیٹر شیری رحمان کی صدارت میں ہوا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے جیل میں ملاقاتوں سے متعلق نقطہ اعتراض پر ایوان کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق بہترین کلاس، مشقتی سمیت دیگر سہولتیں میسر ہیں. ان کی ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو ان کی چوائس کی خوراک دی جاتی ہے اور جو وہ خود کہتے ہیں وہ ساری ایکسیس ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے جو سارے پرزنرز ہیں کنوکٹڈ اور انڈر ٹرائل وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. اڈیالہ جیل از بینگ ایڈمنسٹرڈ بائی گورنمنٹ آف پنجاب. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ریگولیٹ کریں ملاقاتوں کو. وقفہ سوالات میں تخفیف غربت و سماجی تحفظ کے وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے بتایا کہ بی آئی ایس پی میں مجموعی طور پر 3486 اسامیاں ہیں جن میں 1200 خالی ہیں. ان پر بھرتی کے لیے وزارت خزانہ کو سمری ارسال کر دی گئی ہے. چیئرپرسن سینٹر روبینہ خالد نے ایوان کو بتایا کہ بی آئی ایس پی غریبوں کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے. غریبوں کو صرف مالی معاونت ہی فراہم نہیں کر رہے بلکہ بے نظیر ہنرمند پروگرام سے انہیں ہنرمند بھی بنا رہے ہیں. سینٹ اجلاس میں حکم انتقال ریلوے ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا. بل وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پیش کیا. سینٹ نے سابق سینیٹر آن جہانی جان ولیم کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور کر لی. قرارداد سینیٹر علی ظفر نے پیش کی. اجلاس میں نو منتخب سینیٹر عابد شیر علی نے سینیٹر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. صدر نشین سینیٹر شیری رحمان نے ان سے حلف لیا. اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے فورسز کے اہلکاروں کی درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی. جبکہ اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں ہلاک ہونے والے عیسائی برادری کے ارکان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. سینٹ اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. محمد فیصل راؤ، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سٹروک مینجمنٹ پروگرام فالج کے مریضوں کے لیے صحت مند زندگی کے نوید بن گیا جس کی مدد سے سینکڑوں مریض روبہ صحت ہو رہے ہیں. تفصیل سے آگاہ کریں گی وردہ سلیم. پنجاب میں جو کبھی نہیں ممکن ہوا اب ہو رہا ہے. 1 سال کے دوران صوبے میں فالج کے شکار ہونے والے 700 مریضوں کو 3 لاکھ مالیت کا TNK انجیکشن مفت لگا کر پیچیدگی سے بچا لیا گیا ہے. لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ کی 70 سالہ شریفہ بی بی فالج کے خوفناک حملے کے بعد بر وقت ہسپتال پہنچنے پر چند گھنٹے میں صحت یاب ہونے والوں میں سے ایک ہیں.
बड़िया शुक्रगुजार करा जिन्हें मैंने टीका दिता 3 लाख का। जब हम लोग इनको घर से लेके निकले थे तो इनसे चला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स ने पहले फर्स्ट आधे घंटे में इनको एक इंजेक्शन लगाया जो कि मरियम नवाज़ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो मौसूल हो गया है, ठीक है। उस वजह से मेरी वालदा की तबीयत माशाल्लाह अब बहुत बेहतर हो गई हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में 14 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स में कीमती TNK इंजेक्शन मुफ्त लगाए जा रहे हैं। इन मराकज में लाहौर के सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, म्यू अस्पताल, निश्तर अस्पताल मुल्तान और शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान समेत रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, DG खान और लिया में भी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम किए गए हैं। अचानक से आपका चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अचानक से आपको एक बाजू उठाने में या एक टांग उठाने में दिक्कत हो, या अचानक से आपको आपकी एक आंख या दोनों आंखों की बिनाई चली जाए, तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी या करीबी स्ट्रोक सेंटर तशरीफ ले आएं। किसी वक्त भी मरीज़ हमारे पास आए तो हमारे पास इंटरटेन करने की सहूलत मौजूद है, और पंजाब गवर्नमेंट की विजन, CM की विजन के मुताबिक हमारे पास टेनेक्टिप्लेस, रेक्टिप्लेस इंजेक्शन है वो भी मौजूद हैं। तो इस साल हम इस वक्त तक 4 से 5 मरीज़ों को लगा चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ परमानेंट डिसेबिलिटी से बच चुके हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फालिज के मरीज 4 घंटे के अंदर अगर मुतलका अस्पताल पहुंच जाएं तो न सिर्फ जिंदगी बच जाती है बल्कि उम्र भर की माजूरी से भी बचा जा सकता है। पंजाब के शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है, जिसको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में आइंदा हफ्ते से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 18 से 20 जनवरी के दरमियान मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। 20 और 23 जनवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ अजला मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कालाम 4 और पटन में 1 मिलीमीटर हुई। आज कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपसे शेयर करते हैं। लेह और सकरदू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपिस -8, बगरोट -5 और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस्लामाबाद 3, लाहौर 4, कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 3, कोयटा 2, मुल्तान 6 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित -2, सकरदू -9, मुजफ्फराबाद 2, श्रीनगर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, मौसम के हवाले आपने जाना। कुछ मजीद खबरों में आपको बताते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में आइंदा सिफारती सरगर्मियों में तयशुदा दौरों से मुतालिक वज़ारत ख़ारजा में इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सियासी और इक़्तिसादी मफादात के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मरबूत पेशरफ्त को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। आज मुल्क भर में शब महराज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शब महराज की अहमियत और फजीलत के हवाले से देखते हैं सदफ अफजल की ये रिपोर्ट।
शब महराज को अल्लाह ताला ने तमाम रातों पर फजीलत अता की है। इस मौके पर मसाजिद में खुसूसी इबादत और नवाफिल का एहतमाम किया जाता है। शब महराज के हवाले से मसाजिद में भी वाक़या महराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली जाती है, जबकि मुल्क और कौम की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। इस रात आकाए दो जहां सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पर मालिक कायनात के हुजूर पेश हुए। तकरीबन एक माह का सफर बनता है, फिर बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक जहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, और फिर वापसी पे रब्बे ज़ुल जलाल ने दो तोहफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। इस रात आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ भी हासिल हुआ कि उन्हें उस मकाम तक रसाई मिली जहां ना पहले कोई पहुंच सका, ना कोई रहती दुनिया तक जा सकेगा। फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। ये रात अहले ईमान के लिए किसी भी इनाम से कम नहीं। मुसलमान अपनी इबादत के जरिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने शब मेराज के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि शब मेराज उम्मत मुसलमा के लिए रूहानी बुलंदी, कामिल ईमान और अल्लाह ताला के क़ुर्ब की अजीम अलामत है। इस मुक़द्दस रात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ीमुश्शान एजाज़ अता फरमाया जो इंसानी फ़हम से बालातर है और जो अहले ईमान के लिए सरचश्मा हिदायत बना रहेगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि वाक़या मेराज हमें यह सबक देता है कि पुख्ता ईमान, सब्र और इताअत के जरिए इंसान बुलंद तरीन इखलाकी और रूहानी दर्जा तक पहुँच सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को शब महराज के बाबरकत और रूह परवर मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शब महराज उम्मत मुसलमा के लिए अज़ीमुश्शान रूहानी अहमियत की हामिल रात है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज का शर्फ अता फरमाया। ये रात हमें ईमान की मजबूती, इबादत की अहमियत, सब्र, तकवा और अल्लाह ताला से क़ुर्ब का दर्स देती है। उन्होंने कहा कि शब महराज हमें यह पैगाम देती है कि नमाज मोमिन की महराज है। हमें चाहिए कि इस बाबरकत रात से सबक हासिल करते हुए अपने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालें। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर आबिद शेर अली से मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, ऐवान बाला के उमूर और कानून साजी के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मुकाम सदर ने सेनेटर आबिद शेर अली को ऐवान बाला के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि ताजिर, सरमायाकार और सनतकार मुल्क की मईशत की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुल्क के मारूफ ताजरों, सरमायाकारों, सनतकारों पर मुश्तमिल वक्त से मुलाकात के दौरान कायम मकाम सदर ने जोर दिया कि वो कारोबारी सरगर्मियों के फरोग में फ़ाल किरदार अदा करें ताकि मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए मौसर इकदाम कर रही है और कौमी तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार नागुज़ीर है। मुलाकात में मजमूई मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द के अराकीन ने कायम मुकाम सदर को मुल्क में तिजारत, सनत और सरमायाकारी के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए अपनी तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर तुर्बत का दौरा किया। IGFC ने सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशावराना तैयारियों और फील्ड ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग थी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने FC की पेशावराना सलाहियतों और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम को सराहा, जबकि फितनतुल हिंदुस्तान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़ेर तामीर अस्पताल का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तसर मुद्दत में अस्पताल की इमारत मुकम्मल करने पर IGFC बलोचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अस्पताल को जल्द फाल बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी शुजात हुसैन से रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी ने मुलाकात की। अली हैदर गिलानी ने कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातों ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 3642 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,85,098 पर बंद। रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास।
हुकूमत की इक्तिसादी हिकमत अमली के बायस मुल्क की मईशत हर रोज तरक्की की नई मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया, लीबिया, इराक, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के साथ JF-17 थंडर की एक्सपोर्ट्स के मुआहदे आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करते हैं। दूसरी जानिब आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज समेत एशियन स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3,752 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में मुआशी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है। मार्केट में अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है, खासतौर पर सरमायाकार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, और बैंकिंग स्टॉक सरमायाकारों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें कभी इम्कान है कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर 50 बेसिस पॉइंट तक कम किया जा सकता है। साथ ही गैस सर्कुलर डेथ के खात्मे के हवाले से हुकूमत कुछ अपना प्लान लेकर आ रही है, जिसमें डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम के हवाले से सुनने में आ रहा है। तो ये पॉजिटिव इकदाम हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू बाइंग देख रहे हैं। अमेरिका और ईरान को लेके जो टेंशन थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग मोड में आ गई थी मार्केट, बट सेंटीमेंट जैसे ही आप देखें कि बेहतर हुआ है, अगेन मार्केट में कम बैक किया, और वो सेक्टर्स के जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे, जिनमें गुंजाइश थी, जिसमें अपॉर्चुनिटी थी, वो हमें अगेन बैंक साइड पे होते हुए नजर आए। कमर्शियल बैंक थे, फर्टिलाइजर हो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने जबरदस्त कम बैक किया। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 562 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 334 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 117 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 111 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रही। आज मार्केट में 69 अरब 46 करोड़ रुपए की लागत के 4,51,000 सौदे हुए, जिनमें 95 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और पावर जनरेशन की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। समीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। ब्राज़ील इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी को जारी किए गए ऑर्डिनेंस में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तरीकाकार भी तब्दील हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने के शेड्यूल का ऐलान किया था। मुतहरा पर चित्राल में दुश्वार गुजार रास्तों और शदीद मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज ने एक बार फिर अवामी खिदमत का आला मुजाहरा करते हुए बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कई कीमती जानें बचा लीं। पेशावर से चित्राल जाने वाली एक बस को कोराक के मकाम पर दरिया के किनारे हादसा पेश आया। हादसे के वक्त गाड़ी में 13 मुसाफिर सवार थे। अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पाक फौज के जवान फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और THQ अस्पताल बोनी मुंतकिल किया। शदीद सर्दी, खराब मौसम में इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। मुकामी शहरियों ने बर वक्त और मौसर इमदादी कार्रवाई पर पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। पाक फौज ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वह हर मुश्किल घड़ी में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। ईरान के बंदरगाह चाबहार से भारत की दस्तबरदारी, मोदी सरकार के ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहिदे को मामूली अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारतीय मीडिया के माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई ताकि अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से मुतालिक अफराद और इदारों को बचाया जा सके। माशी माहिरीन उमूर के मुताबिक खदशा है कि भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह बज़ाहिर सरमायाकारी के लिए ली थी, लेकिन हकीकत में वो इसको मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। भारत की ये कार्रवाई वाज़ेह है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी खास तौर पर चाबहार को हासिल करने के लिए बनाई गई। भारत ने ईरान से अपने वादे और तवील मुद्दती शराकतदारी को ज़ाती मफाद के लिए नजरअंदाज कर दिया। इस इक़दाम से भारत की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी का झूठा ढोंग एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। BBC ने तालिबान रजीम की आला क़यादत में धड़ेबंदी पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हैबतुल्लाह का वफादार धड़ा अफगानिस्तान को सख्त गीर इस्लामी इमारात के तस्वुर की तरफ धकेल रहा है। हैबतुल्लाह एक ऐसी सख्त गीर रियासत के हामी हैं जहां उनके वफादार उलमा की जिंदगी के हर शोबे पर मुकम्मल गिरफ्त हो। वो कंधार में मुकीम है और सख्त गीर नजरियाती शख्सियात के महदूद हल्के में फैसला साजी करते हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक हैबतुल्लाह की शिद्दत पसंद सोच का अंदाजा 2017 में अपने ही बेटे को खुदकुश हमले की इजाजत देने से होता है। तालिबान रजीम के अहकामात कंधार से जारी
होते हैं, काबुल के वज़ीर अमल दरामद के पाबंद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अहम महकमे, असलहे की तकसीम और फैसला साजी बतदरीज काबुल में कंधार मुंतकिल की जा रही है। हैबतुल्ला अक्सर काबुल हुकूमत को नजरअंदाज करके जूनियर सरकारी अफसरान को बराह रास्त अहकामात भी देते हैं। शेख हैबतुल्ला के अहकामात पर लड़कियों की तालीम और औरतों की अवामी जिंदगी में शमूलियत पर पाबंदियां आयद की गईं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के पार्क्स, ब्यूटी सैलून्स, बगैर महरम सफर, हत्ता के ऊंची आवाज में बात करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब काबुल धड़े की क़यादत अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। सितंबर 2025 में शेख हैबतुल्ला के अहकामात पर तमाम अफगानिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। काबुल धड़े ने हैबतुल्ला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 दिन में इंटरनेट बहाल कर दिया। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों को घरों, ज़मीन और दीगर अमलाक से महरूम करने का मज़मूम सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर पूंछ की तहसील मंडी में अब्दुल अजीज़ की 10 केनाल और 14 मरला अराजी जब्त कर ली। भारतीय पुलिस ने जिला इस्लामाबाद में एक कश्मीरी के ऑल्टो कार जब्त कर ली। जब्तगी की ये दोनों कार्रवाइयाँ काले कानून UAPA के तहत अमल में लाई गई। भारत के यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम निहाद हिफाजती इक़दामात की आड़ में पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गई हैं। श्रीनगर और दीगर कस्बों में भारतीय फोर्सेज के इजाफी दस्ते तैनात किए गए। तमाम आम सड़कों पर मजीद नाके और चेक पोस्टें कायम की गई। फोर्सेज के एहलकारों, गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त तलाशी जारी है। असास मकामात और इमारतों की ड्रोन और CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी की जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जिस पर भारत ने कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुनाफी कब्जा जमा रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज ने अपनी वहशियाना कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों का जीना दोभर कर रखा है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद से एक बयान में दुख्तरान मिलत की सरबराह आसिया इंदराबी और उनकी 2 खवातीन साथियों को भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की एक अदालत की तरफ से झूठे मुकदमात में मुजरिम ठहराने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि भारतीय अदलिया RSS की हिमायत याफ्ता BJP हुकूमत के ज़ेर असर काम कर रही है। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान करीबी हमसाया मुल्क है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल के बगैर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। हम तनाज़े का पुरअमन और सिफारती हल चाहते हैं। Iran is an immediate neighbor of Pakistan and a brotherly country. We hope for an early normalization of the situation in Iran and express support for all diplomatic efforts aimed at regional peace and stability. A stable and peaceful Iran is in the interests of Pakistan, the region and beyond. The UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence, or to interfere in matters essentially within the domestic jurisdiction of states. We strongly believe that all disputes must be resolved through peaceful means and in accordance with international law. All parties must exercise restraint. Pakistan has consistently advocated the primacy of diplomatic engagement and the imperative of avoiding confrontation and conflict in a region already beset by tensions and volatility. We sincerely hope that the situation in Iran will soon return to calm and normalcy, free from any internal turmoil or external pressure, and all relevant parties will return to the negotiating table to find a lasting solution to their differences based on mutual respect and understanding.
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़ियानी ने मनामा हवाई अड्डे पर सदर आसिफ अली जरदारी को रुखसत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे बहरीन के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, इक्तसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। इस दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा, वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला खलीफा और वजीर मालियात और कौमी मईशत शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत को दौरे के दौरान शेख ईसा अवार्ड से भी नवाजा गया। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और इक्तसादी और तिजारती ताउन को आगे बढ़ाना था। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे बहरीन से दो तरफा शराकतदारी के नए इम्कानात उजागर हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़ियानी ने मनामा हवाई अड्डे पर सदर आसिफ अली जरदारी को रुखसत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे बहरीन के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, इक्तसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़ियानी ने मनामा हवाई अड्डे पर सदर आसिफ अली जरदारी को रुखसत किया। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 37 रन से कामयाबी हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। हरारे में पाकिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम 46.5 ओवर्स में 210 रन बनाकर आउट हो गई। कैलेब फैल्कोनर ने निफ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 66 रन स्कोर किए। बेन डकन्स 33 और रल्फी एल्बर्ट 25 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से अहमद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अली रजा, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 46.3 ओवर्स में 173 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। मोमिन कमर 18 और हुज़ैफा अहसन 17 रन बना सके। इंग्लैंड की जानिब से एलेक्स ग्रीन, जेम्स मिंटो, रल्फी एल्बर्ट ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू हो गई है। फिजिकल टिकटें 19 जनवरी से दस्तयाब होंगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। तमाम मुकाबले क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। कैंगरूज 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगे। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को होगा, दूसरा मैच 31 जनवरी, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। मार्च 2022 से अब तक ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा दौरा पाकिस्तान है। बिग बैश क्रिकेट लीग में सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर को 5 विकेटों से शिकस्त दी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। सिडनी में खेले गए मैच में सिक्सर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। थंडर ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 65 गेंदों पर 110 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 11 चौके शामिल थे। निक बेडिंसन ने 26 रन स्कोर किए। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से सैम करन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सिडनी सिक्सर्स ने 190 रन का हदफ 17.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर स्टीवन स्मिथ ने 42 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। उनकी इनिंग्स में 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बाबर आजम ने 7 चौकों की मदद से 47 रन स्कोर किए। स्टीवन स्मिथ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साफ विमेन फुटसॉल चैंपियनशिप थाईलैंड में पाकिस्तान विमेन्स फुटसॉल टीम ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज किया। पाकिस्तानी खवातीन टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। अजवा चौधरी ने हैट्रिक की। और खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त